नेक्स्ट अपने को है एग्जाम्पल नंबर 2, 3 फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट पैरेलल टू द साइड ऑफ द ट्रायंगल। कहते 3 फोर्सिस लग रही हैं किसी पॉइंट ते ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਰਡਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਕੋਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ opposite एंगल, मान लो कि एंगल अगर ए है तो ਉਹਦੇ opposite एंगल ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। show that the resultant is the proportion to, ਹੁਣ resultant ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾਲ। what will be the resultant, ਕਹਿੰਦੇ resultant ਕੀ ਆਏਗਾ if the forces are proportion to the sine of the opposite angles। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ forces ਹੈ they are parallel and proportion to the cosine of the opposite angle, then आप proof करो। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅਦੋਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਿਆ A B ਤੇ C, 3 ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ K cos A, K cos B ਤੇ K cos C। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ PQR ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ PQR ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। अगर नहीं दिते तो आप अपने वालों फोर्सिस की मैगनीट्यूड लै ली। पहली दी हैगी आ K cos A, दूजी दी हैगी K cos B, तीजे दी हैगी K cos C। हुण देखो इक्को पॉइंट तो फोर्स निकल रही है K cos A, K cos B ते K cos C। ओ पॉइंट तो निकल रही, उन्हें क्या ना एक पॉइंट तो निकल दियाँ पईयां 3 फोर्सिस, एक पॉइंट तो 3 फोर्सिस निकल रही हैं। फिर उन्होंने क्या एक पॉइंट तो 3 फोर्सिस निकल रही हैं। हुण देखो पैरेलल टू द BC, हुण देखो आ वाली फोर्स पैरेलल हैगी है किहदे आ, हुण देखो आ BC है, ਇਹਦੇ पैरेलल फोर्स है। देखो सेम उसी डायरेक्शन च है, BC दी भी इसी डायरेक्शन च है, OX भी इसी डायरेक्शन च है। सिमिलरली अपने को अगर AC इस डायरेक्शन दे विच है तो आ वाली ट्रायंगल भी इसी डायरेक्शन च है। तो सिमिलरली अगर साडे को आ थर्ड आ वाली इस डायरेक्शन दे विच है तो ए वाली भी इसी डायरेक्शन दे विच है, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, CA ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, AB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਐ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਅ ਫਿਗਰ। ਹੁਣ ਐਕਸਿਸ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ OX ਤੇ OY, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ 2 ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ X ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ Y ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ X ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ Y ਐਕਸਿਸ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ X ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ Y ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਲੋਂਗ ਦਾ X ਐਕਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਲੋਂਗ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ r cos ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ r sin ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ r cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ r cos ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ r ਅਲੋਂਗ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਥੀਟਾ 0। ध्यान ਨਾਲ देखना कि दोनों अगर पैरेलल ने, BC भी इसी डायरेक्शन च है, OX भी इसी डायरेक्शन च, तो उन्होंने दोनों के एंगल की हो गया, दैट इज अपने को 0। इट मीनस कि मैं इतने लगा देता K cos A इंटू cos 0। हुण अगले दे लिखो K cos भी इधर है पर X एक्सिस इधर है, तो इन्होंने दोनों के एंगल कितना आ, दैट इज पाई माइनस C। तो मैं इतने पुट कर देता पाई माइनस C, cos पाई माइनस C आ गया। हुण अगली थर्ड फोर्स हैगी अपने को K cos C, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ x ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ a ਪਲਸ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ c, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ a ਪਲਸ c। ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ a ਪਲਸ c। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਓਪਨ ਕਰ ਦੋ, K cos A ਇੰਟੂ cos 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, K cos B। ਹੁਣ ਦੇਖੋ cos ਪਾਈ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ K cos C ਹੈ, ਹੁਣ cos 2 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ,
ये आप अप्लाई कर दिता। हुण मैनूं पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल दैट इज अपने को की हुंदा 180, तो ए प्लस सी ਆਪਾਂ को निकाल सकते हैं 180 माइनस बी, तो मैं वही लिख दिता ए प्लस सी की थां ते 180 माइनस बी। लिखण तो बाद फिर मैं की किया के कोस ए इदां ही आ गया माइनस के कोस बी कोस सी इदां ही आ गया माइनस, हुण क्योंकि वन कोस 180 माइनस थीटा की हुंदा माइनस कोस बी, तो माइनस आ गया इधर ते के कोस बी ते कोस सी। ये तो हो गया कि अपने को रिजोल्व पार्ट निकाल रहा है रिजल्ट दा अलोंग द एक्स एक्सिस। हुण आ रहा है कि आप रिजल्टेंट कढनी है अलोंग द वाई एक्सिस। हुण देखो वाई एक्सिस दे लिए अपने को किहड़ा पार्ट सीगा आर चलो इन्होंने उन्होंने एक्सटेंड देखो अगे की किया के ये भी है कोस ए इधर भी आ गया, हूँ इन्होंने दोनों च 2 टाइम्स हो गया तो 2 कोस बी कोस सी आ गया। हूँ कोस ए माइनस 2 कोस बी कोस सी है, तो इधर मैं फॉर्मूला लगा दिता 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिता दैट इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए प्लस बी आएगा, तो माइनस कोस ए माइनस बी आएगा। ये जरूर याद रखना है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए प्लस ए माइनस बी आ फॉर्मूला है जी। 2 कोस बी का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, यही इतने अप्लाई कर दिता कोस ए प्लस बी, हम प्लस माइनस माइनस हो गया कोस बी माइनस सी, ओपन कर दिता। हम बी प्लस सी मैं लिख सकता पाई माइनस ए, ठीक है। हम पाई माइनस ए लिख दिता दैट इज अपने को 2 टाइम ऑफ कोस ए आ गया, क्योंकि कोस पाई माइनस टी दैट इज 2 टाइम ऑफ कोस ए आ गया, 2 टाइम ऑफ कोस ए आ गया तो कोस सी माइनस बी इधर चलेगा तो अपने को आ जाएगा रिजोल्व पार्ट ऑफ द अलोंग द एक्स एक्सिस जिहड़ा एक्स एक्सिस है। हुण सिमिलरली आप रिजोल्व पार्ट निकालना अलोंग द वाई एक्सिस, कुछ नहीं करना है आर साइन थीटा इधर ही रहेगा, के कोस ए अल्फा हुण देखो जिथे जिथे अपने को कोस सीगा उत्थे साइन आ जाएगा। हुण आ फोर्स है नाल कोस साइन 0 आ गया, आ के कोस भी फोर्स है तो साइन पाई माइनस सी आ गया, के कोस सी अपने को फोर्स है साइन 2 पाई माइनस सी प्लस ए, बाकी सारा सेम ही ले लिया आप उदा ही सोल्व करना। तो रिजल्ट की ने जेकर साइन 180 माइनस थीटा होंदा दैट इज ए प्लस साइन थीटा होंदा है, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा होंदा दैट इज ए माइनस साइन थीटा होंदा है। ये रिजल्ट याद रखना साइन 180 माइनस थीटा दैट इज ए साइन थीटा और साइन 2 पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये रिजल्ट ने ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट ने ये आप वही यूज़ करने ने, इतने यूज़ करांगे तो साढ़े को सोल्व करके इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप की करांगे जेडे साढ़े को दो रिजल्ट आए ने इन्हां दी स्केयरिंग एंड एडिंग कर देंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग करके आप सोल्व करांगे। स्केयरिंग एडिंग कर दिता दैट इज अपने को सी माइनस बी है, इधर भी सी माइनस बी, तो जेडे जेडे अपने को सोल्व होंगे आप सोल्व कर देना। सेम एंगल है तो इन्होंने दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। -4 कोस ए कोस हमने देखो इदा ही चलेगा कोस ए कोस सी माइनस बी इदा ही चलेगा। हम देखो ये जी कोस ए कॉमन ले ली दैट इज अपने को 1 + 4 कोस ए माइनस कोस सी माइनस बी, तो ये इन्होंने की लगा दिता कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगा दिता, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगा दिता दैट इज ए माइनस कोस ए प्लस बी माइनस कोस बी सी माइनस बी। हम ध्यान ਨਾਲ देखना कि इतने आप ए की वैल्यू की पुट की है, ए की वैल्यू पुट की है मैं दैट इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी पुट किया है, ए की वैल्यू पुट की है 180 माइनस बी प्लस सी, जो कोस 180 माइनस बी प्लस सी होएगा दैट इज इक्वल टू माइनस कोस बी प्लस सी आ जाएगा। यही इतने आ गया, इन्होंने सीधा लिख लिया माइनस कोस बी प्लस सी माइनस कोस सी माइनस बी, तो अपने को 2 टाइम ऑफ कोस बी कोस सी आ गया, तो अपने को पुट कर देंगे तो अंडर रूट कर देंगे तो साढ़े को रिजल्टेंट पार्ट आ जाएगा। तो फस्ट पार्ट तो अपने को इतने प्रूफ हो गया, तो सैकेंड पार्ट लिए उन्हें की किया सी अगर वही फोर्सिस प्रपोर्शन हो जाए साइन ऑफ द एंगल ऑपोजिट एंगल दैन देयर प्रपोर्शन टू द साइड की होएगा साढ़े को दे आर इन इक्विलिब्रियम हो गए, तो सारी फोर्सिस आपस में इक्विलिब्रियम हो गई, तो अगर कोई भी फोर्सिस आपस में इक्विलिब्रियम है तो रिजल्टेंट हमेशा 0 होएगा। अगर कोई भी दो फोर्सिस आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੋਏਗਾ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी।